Yeah, namaste everyone, and welcome again. I guess some of you couldn't hear what I said. मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे दोस्तों को, चाहने वालों को, जो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं दास्ताने मोहब्बत अप्रैल की इस श्रृंखला में. Welcome all dear friends, loved ones, far and near. अगर आप यूएस में बैठे हो तो गुड मॉर्निंग, यूरोप के लिए गुड आफ्टरनून और इंडिया के लिए नमस्ते. The selection of books has been outstanding March episode में, with Niketan Raoji showcasing Anirudh Bhattacharya's book on Basu Chatterjee. Venki Krishnan began his series with Romancing the Song by Manik Premchandji, where part one, where the introduction was covered, part one will be covered in the May episode. And I attempted to cover on Gulzar Saab ji. Actually, I met them. That's his book, and like Shankar Iyer ji says that it's very hard. He's an ocean. It's very hard to even discuss Gulzar Saab, but we make chota sa attempt to understand his poetry, understand his philosophy, his books, and his entire repertoire of, as they say, of his work. So आज we have a very special book, and पहले part one में आज हम शुरू करने वाले हैं with a panel discussion, a very deep dive into completely about Hindi film music, and we will welcome the guests on screen now. And so that's my next. So this was the book last time. If you all missed it, you can still go and see it on YouTube, and that's why we are using the YouTube stream, so that if you missed this episode, you're bahar ho and you're not able to attend, तो आप बाद में भी देख सकते हैं. But it's so nice when you give like your good evening Jamuna ji, when you say hello to us. It makes us also happy that you're sharing that evening time, precious आपका वक्त आप हमारे साथ बिता रहे हो. धन्यवाद उसके लिए, and welcome again. तो as you all know, थोड़ी सी बात अब बुक को कैसे, I mean it's a just slide तो लगाया है book, इसका मतलब क्या होता है, why we doing this book, and so कौन से बुक चूज करने हैं. बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि थोड़ा सा उसका tell us how you to choose a book. तो म्यूजिकल बुक का मतलब क्या होता है. हेलो निकेतन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. fabulous presentation and showcase last time by you. तो you choose it because म्यूजिक डायरेक्टर पे हो हिंदी सिनेमा के, या कोई फिल्म पे हो, या मे बी एन एक्टर के ऊपर हो. बहुत सारी बुक्स हैं, एंड कितने तो सो मच देयर इज टू रीड, एंड इफ यू हैव रेड इट, एंड फिर मैं आपसे सुनूंगी यार, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर, बिकॉज मैंने आपने मुझे स्निपेट्स दिए हैं, और वैसे 30 बुक्स एक साल में हो जाते हैं, जो नामुमकिन होता है सबको सब पढ़ने के लिए. तो इट्स ग्रेट टू ऑल्सो हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू. शोकेस का मतलब है जो ऑथर ने लिखा है वो बात करते हैं, एंड वर्बैटिम और फर्स्ट वॉइस में, और आपके पॉइंट ऑफ व्यूज भी होंगे, विच इज अबाउट द रिव्यू, कि हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये शायद बेटर हो सकता था वैसे. Okay, so that is how it is. So feel free to reach out to any of us to do a book showcase, and it is so nice that Shankar Iyer and Kalpana Swami of Nostalgia and Musically give their time for this, because they love Hindi film music, whichever era it is, and this is about that. It is about understanding what is in the text, building the blocks, connections between books, making sure we're feeling good, mentally, health wise, and connecting. Basically ये गुफ्तगू connection के लिए है, ये बातचीत उसके लिए है. Okay, and so that's why Shankar Iyer and Kalpana Swami are very important to us on this platform as guests, and to hear them bring out nuggets that none of us could have even maybe dwelled into or thought of. So that's the depth of intelligence they bring to us, and I'm so thankful for that. This is just an R4 show, and those who are not R4ians also have reached out. Please join us. It's one of those endeavors where we are putting the text to the music, and please join the Nostalgia shows and Musically shows as well. More information follows. Sure, Niketan. And okay, so the next goes out to, without much ado, I'm going to share the screen so that I bring them on, and this is the full screen layout. So here are our guests, and Mamta Mandal is joining us from Singapore, founder, CEO of Global Hindi Foundation. She has been in this for almost 15 to 18 years in Singapore, propagating Hindi and little languages of India.
her endeavor to bring Hindi and into the corporate and into all the spheres where it's important overseas to Hindi भाषा की प्रोत्साहन करना और उसकी keep having the engagement, उसी में बात करना, Hindi showcase करना is so essential to her. So I thought it was very important to have her as our guest, and hear her views about the joint collaboration of soul books, soul music, and and her work. And I'm bringing her on stage. Shankar Iyer is needs no introduction from me. I've learned so much from him. God bless you for coming on the show, and I'm going to put you on stage now. And Mrs. Kalpana Swami, the CEO of Musically, thank you so much for being with us on Showcase now. Bringing you on stage. A minute. Yes, can we see everybody? Yes, great. So I'm going to stop presenting. Let me just stop presenting, or just put this on a. Here it is. So Mamta ji, Shankar, where is my friend Kalpana? Here she is. Yay! Welcome Kalpana Swami ji, Shankar Iyer ji. Thank you for all the help and the support. अब मैं हिंदी में बात करूंगी. Welcome ममता मंडल जी. बहुत बहुत धन्यवाद कैंडी. आपको शुरू करना है, कुछ कहना आपको? नहीं, भाषा और संगीत दो ऐसे समुंदर है जिसमें आप मुझे डुबकी लगाने के लिए बुला के लाए हैं, तो मैं सुनूंगी और आप सबके साथ. So let's begin. Should we begin, Shankar? Do you want to? Yes, please. Are you able to hear us? Okay, let me just check. Yeah, check the sound. I'm not able to hear. Can you all say something? Let's check the sound. Hello. You are able to hear me? We are able to hear me? Yeah, Shankar. I was listening to Mamta ji and I think Candy, are you able to hear her? She was saying something. मैंने कहा भाषा और संगीत दो इतने बड़े समंदर हैं, उसमें आप मुझे डुबकी लगाने के लिए आज न्योता दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आप लोगों के साथ मुझे भी सीखने को मिलेगा, उसी के लालच में मैं पहुंची हूँ आज कैंडी जी के सभा में. ये सभा तो बहुत बड़ी सभा है. हमारा ये एंडेवर और ये जो है हम कर रहे हैं ममता जी, यू शुड अटेंड रेट्रो फिल्म म्यूजिक नॉस्टैल्जिया के प्रोग्राम्स. मैंने आपको भेजूंगी वो रात के प्रोग्राम्स. या एंड यू कैन अटेंड मॉर्निंग में. निकेतन जी इज फ्रॉम सिंगापुर, यू नो हिम वेरी वेल. आप लोग बहुत प्रोग्राम्स करते हो साथ में. एंड कल्पना जी फोकसेस ऑन म्यूजिकली वेयर 85 के बाद के गाने. सो कल्पना जी, से समथिंग बिफोर वी बिगिन. Thank you so much. This is the second edition already और बहुत खुशी की बात है क्योंकि जैसे ममता जी ने बोला, I mean I will just reiterate the point कि हम जब गाने सुनते हैं तो सिर्फ मेलोडी तक सीमित नहीं होती है, उसके बारे में उसका साहित्य जो होता है that is also equally important. And इन सब चीजों को ना डॉक्यूमेंट करके जब किताबों में भरी जाती है ना तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि हिंदी फिल्मों से और हिंदी फिल्मी म्यूजिक से ताल्लुक रखती है, जिनको कि उतनी प्रमोशन शायद नहीं मिलती है जितने की बाकी बेस्ट सेलर्स, फिक्शन और सेल्फ हेल्प वाली जो किताबें होती है. क्योंकि जब हम किसी संगीत के बारे में थोड़ा गहराई से समझना और उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, किताबों का बहुत बहुत बड़ा हाथ आता है उसमें. So thank you so much for this initiative and really look forward to be associated with it in whichever capacity I can. Thank you. Awesome. So thank you Kalpana, you said it so well. Shankar ji, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ कह दिया कल्पना ने, बहुत सही मुद्दे पॉइंट्स शेयर किए उन्होंने. बट एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि शब्दों के ऊपर ध्यान जाना बहुत, जैसे कल्पना ने कहा, जैसे आप कह रही थी, बहुत जरूरी है. और कई लोग शायद ऐसा मैं मानता हूं कि कोई भी रचना होती है खास करके संगीत में, तो मुझे लगता है कि पहले धुनों के ऊपर या मेलोडी के ऊपर ध्यान कई लोगों का जाते रहता है. तो ऐसे फोरम्स जो होते हैं जब हम साथ आते हैं और शब्दों की ओर थोड़ा गौर करते हैं,
So it actually helps a lot of us, and pleasant views get exchanged with a lot of learning for each one of us. तो हमें लगता है कि एक जो स्ट्रेंथ पॉइंट है किसी बंदा या बंदी का, उससे थोड़ा हटकर एरिया ऑफ फोकस अगर हम कहें तो उनके लिए जरूर ये बहुत उपयोगी ऐसे सेशंस बनते हैं. तो it's very, very beautiful that you have organized this and we are able to leverage all of us in different ways. Thank you. Thank you so much, Shankar. So let's kickstart the panel discussion. It's a very wonderful topic and supported by, I'm going to put this on screen and get off stage. First, I will invite Mamta. अभी हम लोग panel discussion में तो सबको दिखना चाहिए. So please keep your windows open and so everyone can see. A lot of nice comments coming in. Hello from Jamuna ji, Niketan ji. Okay. I'm hoping a lot of our friends are joining and going to talk to us. So Mamta ji, should I go for you first? I'd like to hear your views. Candy, I'm here for you. Yes. So we know अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हिंदी film music. Okay. It's an evergreen global language. ये तीन शब्द बहुत महत्व रखता है. Evergreen, eternal, right? Global, wherever you're sitting, music है, right? दिल को छूने वाली जो एक भाषा है वो म्यूजिक है. अगर मुझे दोस्त बनाने हैं तो म्यूजिक के थ्रू. मैं हमेशा सोचती हूँ, 2-3 मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको म्यूजिक नहीं पसंद. मैं पहली बार ऐसे लोगों से मिली हूँ और मैं कहती हूँ शायद आपने ये गाना नहीं सुना होगा, शायद आपने एस.डी. बर्मन की आवाज नहीं सुनी होगी. ओके, when he sings डोली में बिठाई के कहार, and you know he's like oh mani re, when he says oh my god, you know कैसे दिल को नहीं छू सकता है. तो that is global language मेरे लिए. आपसे मुझे सुनना है कि कैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक has been instrumental in building trusting networks, क्योंकि आप सिंगापुर में हैं, and connections in your in your journey. And how do you think we can make these beneficial, and what benefits do we get out of this? आपके from Global Hindi Foundation and your work that you've done for Hindi. बहुत ही विस्तार वाला टॉपिक है कैंडी जी, बस सब चीजों को मैं छू तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी जो नॉलेज है म्यूजिक में बहुत सीमित है. मैं एज एन ऑडियंस सुनती हूँ, लेकिन हाँ भाषा की दृष्टि से जो हमारे सामाजिक वो इंटरेक्शंस होते हैं, जो कम्युनिटी लेवल पे हम इंटरेक्ट करते हैं, जब हम पहला चीज जो हमको जोड़ती है वो है संगीत और भाषा दोनों. जरूरी नहीं है कि आपको संगीत पूरी तरह से आपको ज्ञान हो संगीत का, लेकिन एंजॉय करने के लिए आप चाहे वो रहे ना रहे हम महका करेंगे हो, चाहे लग जा गले हो, चाहे आप कहें कि प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, सब जो है एक भाव दर्शाता है. और हर उम्र के जो कहते हैं हर उम्र के हर पड़ाव पे हर तरह का व्यक्ति उससे जुड़ता है. अब चाहे हम भारत में रहें चाहे भारत के बाहर रहें, संगीत और बॉलीवुड संगीत हमारे समाज के अलावा भी मलेशिया, इंडोनेशिया हर तरफ सराहा जाता है. तो वो भाषा के बियॉन्ड है म्यूजिक. तो जो एक कम्युनिटी से जुड़ने वाली कड़ी है वो संगीत बहुत जल्दी बनती है. और जब भी हम किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं या गेट टुगेदर्स में जाते हैं, जब तक हिंदी गाना ना हो या हिंदी गाना बजाना ना हो, वो कार्यक्रम अधूरा सा ही रहता है. उसके अलावा भी म्यूजिक इंटरेस्ट ग्रुप, आप स्वयं सिंगापुर रह के गई हैं, निकेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही थ्राइविंग इंडियन कम्युनिटी है जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का ग्रुप है, जो इंडियन फोक म्यूजिक से लेके बॉलीवुड सिनेमा म्यूजिक तक समय समय पर परफॉर्म करता रहता है और हमारे पूरे समाज को एक साथ बांध के चलता है. तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है म्यूजिक का और भाषा का हमारी कम्युनिटी को जोड़ने का. और उसके लिए बॉलीवुड म्यूजिक से बेहतर कोई चीज है नहीं, चाहे वो रेट्रो हो, चाहे 90s की हो, चाहे अभी लेटेस्ट जो चल रहा है रीमिक्सेस का जमाना है. बट उसमें भी आप देखेंगे कि पुराने गाने ही दोबारा बन रहे, चाहे बरेली का झुमका हो या तो अब भाषा और संगीत तो आपको जोड़ने के लिए चाहिए ही चाहिए दुनिया में. और इससे बॉलीवुड हमारे लिए बहुत एक साधन है, बहुत स्ट्रॉन्ग साधन है जिससे हम अपने समाज से जुड़े रहते हैं उसके, और अब आने वाली पीढ़ी को भी उससे जोड़े रखते हैं. जी, so
हाँ, तो मैंने बहुत सारे म्यूजिक सेशंस सिंगापुर में आई बीन पार्ट ऑफ, निकेतन जी, ममता जी। सो यस, आप जो कह रहे हैं, आप यू डू पोएट्री कॉम्पिटिशंस, अगली बार हिंदी फिल्म म्यूजिक या रेट्रो फिल्म म्यूजिक। अभी रेट्रो का मतलब मैं आपको एक गूगली का क्विज क्वेश्चन करने वाली हूँ। रेट्रो और नॉन रेट्रो का मतलब आप जानती हैं ममता जी? रेट्रो मतलब शायद 1930 से 1985 तक के गानों को कहा जाता है। उसके बाद वाले फिर शायद रेट्रो में नहीं कैटेगराइज हो पाते, क्लासिक, मगर गाने तो गाने हैं। ओके, सो विच एरा? आप 1930 से कब तक बोलेंगे रेट्रो म्यूजिक को? 1980s, 85, 86 तक। नॉट बैड, वाओ। और 85 के बाद उसको रेट्रो नहीं बोलेंगे, करेक्ट? नहीं, शायद नहीं बोलेंगे रेट्रो, लेकिन हाँ, गाने गाने हैं। सुनने वाले उसको कैटेगराइज करके नहीं चलते हैं। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट, आई थिंक फॉर शंकर, राइट? पढ़ने वाले कैटेगराइज करके चलते हैं। ओके, मैं आपके आप शायद, हाँ, दिल अगर को कैटेगराइज करना हो इमोशंस में, तो हम सिर्फ खुशी, दुख, वो सब कहते हैं, लेकिन म्यूजिक में रेट्रो और नॉन रेट्रो होता है। और इसलिए हम दो स्टॉलवर्ड्स को भी साथ हैं, एक्सपर्ट्स जो भी हैं। अभी मैं शंकर अय्यर के पास जाने वाली हूँ। मुझे बहुत उनको तंग करना बहुत पसंद है, तो आप जरा आप यू आर गोइंग टू एंजॉय द शो विद शंकर। I like his hat. Thank you, my friend. You're such a darling of everyone. And I know everyone loves you and of the R4 members, and there are non-R4 members who are losers. I'm saying this openly, who have not yet joined Nostalgia programs, and I know they will. Well, I'm only biased for one thing. एंड आई मस्ट से, मैं बहुत बायस्ड हूँ शंकर अय्यर और कल्पना जी के साइड पे हूँ, क्योंकि जो उन्होंने एफर्ट डाला है टू बिल्ड द रेट्रो म्यूजिक ग्लोबल, द ओनली रेट्रो ग्लोबल म्यूजिक कम्युनिटी, okay, is with a lot of their effort, and it's now 5 years old and young, not even old, young, and we hate that word old, and we hate the word Bollywood, okay? Indian cinema and no old, they are all retro songs. ममता जी आपके लिए था, okay? So शंकर जी आपके लिए प्रश्न है, why do you think people want to have a deeper understanding, knowledge and reading about legendary musicians, artists, directors and their creations, and how do you think this is beneficial in many ways? आप क्या सोचते हो? थैंक यू कैंडी। पहली बात तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा दैट रेट्रो इज नॉट ओनली टिल 1985, क्योंकि म्यूजिकली जो हमारा शो है उसमें 90s के गाने और इवन गोइंग अप टू 2000 2005 के गाने आज रेट्रो माने जाते हैं। सो आई थिंक ये एक पर्सपेक्टिव है, जस्ट टू ऐड टू ममता जी's point, that it's only a perspective. Retro for many could be up to 85. There are many who think 1965 के बाद तो रेट्रो है ही नहीं। So it's all different thoughts. और मैं ये जरूर मानना चाहूंगा कि 1990s का भी जमाना अभी रेट्रो हो चुका है, एंड इवन मूवीज लाइक 2000s में लगान, दिल चाहता है एंड ऑल जो बाद में आए वो भी रेट्रो हो चुके हैं, क्योंकि वो 20 साल के ऊपर हो चुके हैं। सो इट्स ऑल अ पर्सपेक्टिव, तो लेट्स नॉट ब्रॉडली और ब्रॉड ब्रश रेट्रो इनटू स्पेसिफिक एरियाज। जी हाँ, अगर लास्ट 10-15 साल में कुछ गाने हैं तो शायद उनको रेट्रो ना बोले, बिकॉज ऑफ द प्योर डेफिनेशन ऑफ सॉन्ग्स और इराज और रेट्रो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रेट्रो का बहुत ब्रॉड एक ब्रैकेट होना चाहिए। दूसरी बात, गाने जो हैं हम पर हमेशा, मेरा ऐसा मानना है, गाने हमेशा हम पर ग्रो होते हैं, फॉर द वांट ऑफ राइट हिंदी वर्ड, ग्रो होते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि हर एक जो संगीत प्रेमी है वो जितने गाने सुनते रहता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और कल्पना एंड अदर्स विल आल्सो ऐड टू दिस, कि 2 साल पहले हम जो गाने पसंद करते थे उससे ज्यादा या उससे अलग हम आज गाने पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के गाने सुनते हैं, और अलग अलग जो हमारे लिसनिंग एक्सपीरियंसेस हैं उसमें से हम अलग अलग इन्फर करते हैं। सो इट्स ऑलवेज मूविंग पॉपुलेशन, एडिंग पॉपुलेशन एंड पॉसिबली अ चेंजिंग पॉपुलेशन एज वेल। तो बिकॉज गाने हम पर ग्रो होते हैं, हमारा मानना है, मेरा मानना है, और कल्पना का भी और हम सबका मानना ये है कि आपको साथ में रहकर और थोड़ा मतलब क्या कहें, और थोड़ी गहराई नापनी पड़ेगी गानों को लेकर। सो उसका मतलब ये है कि अगर हम गाने सुनते हैं तो
2 या 3 बार तो हम सुन लेते, लेकिन जैसे जैसे सुनने लगते हैं तो वैसे वैसे ये बात आती है कि यार इस गाने में ना ये कुछ अलग सा इस बार हमने सुना, या इसका जो एक एक्सप्रेशन था इंस्ट्रूमेंट का या कोई भी शब्दों को लेकर भी चलिएगा, देयर वाज अ डिफरेंस इन द वे आई हर्ड दिस टाइम। तो मुझे ये बात कहनी है यहाँ पर कि इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट टू द डिटेल्स फॉर अ जेन्युइन म्यूजिक लवर। मैं कैजुअल म्यूजिक लवर्स की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए शायद उतना वक्त नहीं होता और उतनी दिलचस्पी नहीं होती कि वो और जाकर इसको टटोलें गानों को लेकर। लेकिन जो जेन्युइन म्यूजिक लवर, जो संगीत को बहुत दिल से चाहते हैं, वो एक लिमिट के बाद या एक कुछ अंतर के बाद शायद नया ढूंढने की कोशिश करते हैं गानों में, और इसलिए वो ऑटोमेटिकली उनमें एक भावना आ जाती है कि मैं इसको कैसे देखूं। तो जब आप बार बार सुनते हो गाने, जब आपके ऊपर ग्रो होना शुरू करते हैं, तो आपको खुद ये महसूस होता है कि नहीं, मुझे और जानना है, मुझे और फाइंड आउट करना है इस गाने के बारे में क्या है। एंड द मोमेंट यू गेट इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड, आप ये रियलाइज करोगे कि अगली बार जब आप उस गाने को सुनते हो तो उस नजरिए से सुनते हो, उस नजरिए से उसमें एक खुशी पाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई किसी को टोक नहीं रहा हूं, जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। राहुल देव बर्मन के बहुत फैंस हैं हमारे संगीत प्रेमियों में। अगर हमने उनको एक शंकर जयकिशन का गाना प्ले कर दिया तो बोलते हैं कि शंकर जयकिशन का हमने सुना ही नहीं, बहुत कम सुना है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत दिन से राहुल देव बर्मन को सुन रहा हूँ, मैं कुछ अलग सुनना चाहता हूँ, मैं शंकर जयकिशन के कंटिन्यूसली उनको 10, 20, 15, 25 गाने सुनाऊंगा। तो धीरे धीरे उनको एक अलग सा एक टेस्ट मैं उनको दे रहा हूं। और फिर ऐसी बात हो गई कि शंकर जयकिशन, हाँ मुझे अभी पहले इतना पता नहीं था, लेकिन अब पता होने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो शायद मैं उनको कंसिडर करूं। तो व्हेन यू गेट इनटू दिस, यू रियलाइज दैट व्हाट यू वर नोइंग 2 years बैक, उससे ज्यादा आप जानने लगे हो। तो हर चीज में यही बात है, आप जितना सुनते हो, आप जितना डीप जाने की कोशिश करते हो संगीत प्रेमी के तौर पे, और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हो, रागदारी हो, शब्दों का महत्व हो, जो भी, वो आपको नेक्स्ट लिसनिंग्स में हमेशा एक इंपॉर्टेंस देता है। सो आई गेस टू कट इट शॉर्ट, इट इज जस्ट द इंक्लिनेशन one that you need to have, which is obviously inbuilt and possibly you can also develop. But दूसरी बात यह है कि हर एक बार आप जब गाना सुनते हो तो उस नई जानकारी के साथ आप उस गाने को अलग नजरिए से देखते हो, इसलिए जानना जरूरी है गाने के बारे में, म्यूजिशियंस के बारे में, लिरिक्स के बारे में, रागों के बारे में। रागों जो ज्यादा कठिनाई है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो आसानी से समझ में है उसकी बात कर रहे हैं, बस उतना ही। दैट्स माय व्यू। नो, एक्सीलेंट। आई मीन आपने जो अभी कहा ना कि maybe we've heard Shankar Jaikishan songs and maybe we've heard Ravi and C. Ramchandra and all, but हम लोग immediately उसको पहचान नहीं पाते. So that grows after listening to your shows, आपके shows, and जो knowledge बढ़ती है every time there's something new, right? We learn, and of course memories can forget, so it sounds new again and again as we grow older, right? That वो भी होता है शंकर. So but जो आप बताते हो, तो जो शंकर जी करते हैं प्रोग्राम में नॉन R4 मेंबर्स के लिए कहती हूँ कि इंस्ट्रूमेंट किसने बजाया, क्यों आप ये this part you're seeing, hearing the guitar or the strings or the ढोलक or the madal, you get to know that. Of composers, and even the style of composers, वो भी एक बहुत very important. Yeah. So maybe R.D. Burman is very easy to make out because so much of rhythm and drums and whatever Western. But if you ask somebody about Ghar Aaja Giraye, so no, they first in the beginning they didn't know it was an R.D. So वो हो जाता है, and that learning. But what is very good is आज के book में जो होने वाला है, so connected to what Shankar ji said, is that in their reviews, सारे कस्टमर्स जिसने खरीदा है वो बुक, मैं बहुत डीपली जाके पढ़ चुकी हूँ, रिव्यूज दे चुके हैं कि हमने कभी म्यूजिक को और ये गानों को इस तरह नहीं सोचा. So that is exactly the flavor जो होता है when we are so amazed. हम लोग जब Nostalgia के programs में आते हैं and very amazed. I mean sometimes it's so like what was that? What hit me? Shankar ने अभी ये कहा. So those are always surprise moments. Those are always new moments हम सबके लिए. So Shankar, yeah, that's why you think that it's a good thing to have a deeper understanding and more love for why not our Hindi Indian film music, right? And yes, that's what every song listening experience improves with a deeper understanding. Every song listening experience. That's my only point. Yes. So Jamuna ji कहती है कई बार किसी और गाने से कनेक्ट करने लगते हैं.
एब्सोल्युटली। हाँ, और वो भी है। है ना, हाँ सही बात है। नजरिया बदलता है बार बार सुनने पर, हर बार नई चीज नजर आती है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो या शब्दों के लिए हो। Perfect. Yes, Jamuna ji. Thank you for that. Yes, absolutely. And it's like talking to our viewers, right? We love you, Jamuna ji. So now comes to Kalpana ji. Now I must say, Shankar ji, I did not know that आप 85 के पहले 85 के आफ्टर को भी आप रेट्रो बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक फॉर अ कट ऑफ we deal with it like that. I know musically I love some of the Vishal Bharadwaj songs of Omkar, you know that, and of Wake Up Sid and all, right? So lovely, Ehsan Shankar Loy and Pritam. So Kalpana ji, this one is for you because you really are dealing aapke show mein, we get to hear modern music. I will call it modern क्योंकि after a certain period we had different composers, we had new people who are on the block and who are doing a fabulous job as well, till A.R. Rahman, and now he's into some new stuff I've heard of. Technologically he's gone way ahead of everyone in the US. He's doing something new project, we'll all get to know of it soon. But Kalpana ji, this question is for you because you deal with that generation. How do you think we can make apna Gen Z? Now Gen Z and Alpha, Gen Z is before 2000 born, 2000 onwards is Alpha, and before 2000 is Gen Z. We are of Gen X and Gen Alpha. How do we make sure that वो लोग सुने, वो लोग mindfully music appreciate करना सीखे, इन legendary maestros के, artists के, and appreciate and listen to HFM or anything? Okay, so आप अपने तरह से बताइए, because you also are a mother, you have a beautiful daughter, and you deal with her age group. Over to you. इस बात को शुरू करने से पहले मैं शंकर की बात को आगे लेके जाऊंगी, और एक चीज और जो मैम ने बोला उनकी बात को भी आगे लेके जाऊंगी, कि पहले तो ये कि जो रेट्रो का जो कंसेप्ट है बदलते रहेगा, ये एक साइक्लिक कंसेप्ट है। आप जिस एरा में आपका जो प्राइम एज होता है ना, 15 से लेकर 25-30 तक के, when you are young blood, you are exploring, when you are experiencing new worldly wide things, उस समय में कोई भी हो आप, कोई भी इंसान जब उस फेज में अपने जो सबसे गाने सुनते हैं, वो एक तो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, दूसरा वो उनके साथ जिंदगी भर के लिए रह जाते हैं वो गाने, वो उनका रेट्रो है। तो मेरा रेट्रो शायद 80 और 90 है, मेरे अगले जनरेशन का शायद 2000 है, मेरी बेटी का 2010 है, राइट? सो दैट इज अ साइक्लिक मोशन एंड दैट विल कीप चेंजिंग एंड कमिंग। और जैसे कि शंकर ने बोला, शंकर ने बहुत अच्छी बात बोली कि हर बार जब हम किसी गाने को पहले सुनते हैं तो सरसरी नजरों से, सरसरे इससे सुनते हैं कि चलो कहीं कुछ गाना बज रहा है, कुछ चीज उसमें फिर हमारे दिमाग में रह जाती है, फिर हम उसको जब दोबारा सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, हम उसको समझने और उसको एंजॉय, अप्रिशिएट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो द one word, one sentence which I always use, and Shankar will smile I'm sure when I say this, ki the more you learn, the more you realize how less you know. हर बार जब हम किसी भी चीज, सिर्फ संगीत नहीं, कोई भी चीज, अगर हम सिर्फ सरफेस लेवल में कोई चीज को जब समझते हैं ना, तो हर कोई समझता है कि उसको सब आता है। जैसे जैसे आप एक एक परत उसकी अंदर घुस के उसको समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज हो, संगीत हो, साहित्य हो, पॉलिटिक्स हो, एनवायरमेंट हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, the more you start getting into the depth of it, the more you realize how less you have known. So same thing happened. आज जब मैं म्यूजिकली चला रही हूँ, पिछले 3.5 साल से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आज के जमाने के जो अच्छे दौर, अच्छा संगीत है, you know, I want to surprise you by saying, जो आपका सवाल था मेरे लिए कि नए जमाने को कैसे इन लोगों को सुनाया जाए, तो you'll be surprised to know that नया जमाना भी इनको सुनता है, इनके गानों को सुनता है। हाँ, शायद माइंडफुल या फिर डिगिंग डीप नहीं होगा,
क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, या फिर everything is like, you know, very fast in buffering. However, there are kids, there are people who refer back to S.D. Burman, Madan Mohan, Shankar Jaikishan. कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको कि ज्यादा पढ़ते समझते हैं compared to the others. And thanks to all the other platforms, जैसे आज के जमाने में हमारे पास में access to content बहुत easy है, तो हाँ, हमें इन बच्चों को थोड़ी सी राह दिखानी पड़ती है. जैसे just to give you an example, कि जब आप ये कहते हो ना कि modern music, तो मॉडर्न म्यूजिक क्या है? मॉडर्न म्यूजिक इज नॉट कि आज का बनाया हुआ म्यूजिक. मॉडर्न म्यूजिक इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दैट, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ में अकॉस्टिक कैसे यूज होता है, या फिर नए आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं. पहले होता था कि सिर्फ फिल्म गाने हैं या फिर नॉन फिल्म गाने हैं जिसके कि आपको सीडीज या कैसेट्स या एल्बम मिल जाता था. आज ऐसा नहीं है. आज आपके पास में बहुत सारे एवेन्यूज है. अगर आप जैसे यू नो बहुत इजीली कह देते ना कि अरे आजकल ये आर्टिस्ट फिल्मों में नहीं गा रहा है, very underrated artist. No, they are not underrated, and they don't want to be called as underrated. There is a Sonu Nigam who's doing absolutely amazing work in Coke Studio, in Bhumi, Salim Suleiman ka Bhumi project mein, या फिर there are so many individual artists who have come up, who are doing experiments, and these legendary artists, these veterans are also taking part in that. Why? Because दो चीजें. एक तो ये कि फिल्मी का जो वो एक पहले जो प्लेबैक वाला जो कंसेप्ट था, अब वो नहीं है, तो गाने बनने और गानों को एंजॉय करने का जो स्टाइल है वो दूसरा हो गया है. सेकेंडरी, जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, इन लोगों को भी एक फ्रेश आइडियाज मिलता है ना. जो अब भले ही वो श्रेया हो या सुनिधि हो या फिर अरिजीत सिंह हो या फिर अमित त्रिवेदी हो, ये लोग सिर्फ एक दायरे का काम नहीं कर रहे हैं आज. ऐसा नहीं है कि अगर विशाल शेखर की कोई फिल्म नहीं आई है पिछले 5 साल में, इसका मतलब वो लोग बेरोजगार है. नहीं, वो बेरोजगार नहीं है. दे आर डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन म्यूजिक, experimenting music, and a lot of other things which is making the young crowd sit up and take notice. And these kids are very, very active. These kids are very agile in their you know, understanding of what's happening around. Plus जैसे हम म्यूजिकली में एक छोटा सा एक सेगमेंट चलाते हैं जिसको कि हम क्विज के फॉर्मेट में लेते हैं. एंड द रीजन बीइंग कि नए गानों में भी अच्छी खासी रागदारियां यूज होती है, नए गानों में भी बहुत सारे अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. इसको आप कैसे सुनोगे, इसको आप कैसे समझोगे, जब तक आपको कोई बैठ के सुनाएगा समझाएगा नहीं. हो सकता है इट्स वेरी इजी टू जस्ट मूव देम असाइड सेइंग कि अरे ये तो डिजिटल है. नहीं, आज भी अगर जैसे हम लोग जो रागदारी करते हैं, आज पिछले 1.5 साल में हमने 20 रागों को एक्सप्लोर किया है और डिस्कस किया है. मोर देन 21 इंस्ट्रूमेंट्स have been discussed and put as a part of quiz. And I'm not talking of instruments only like a violin or a sitar. I'm talking of instruments like oboe, oud, clarinet, bulbul tarang, tabla tarang, jal tarang. You know, all these instruments which हम सिर्फ रेट्रो या फिर विंटेज गानों के साथ ही जोड़ते हैं, आज भी बखूबी इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है. हाँ, एवेन्यूज बहुत सारे हैं. सो यू नीड टू बी अजाइल, यू नीड टू बी वॉकिंग इन पेस विद द किड्स who are listening to a lot of other things along with what is there in the retro and the vintage segment. They do listen to it. We need to sit with them and figure out what do they listen. And it's a evolving discussion, right? I mean, you know, आप किसी को बैठा के छड़ी या बेंत लगा के उनको नहीं बोल सकते हो कि ये पढ़ो या ये करो. उनके साथ बैठो, समझो वो क्या कर रहे हैं, किस टाइप के गाने वो पसंद करते हैं, कौन उनका आर्टिस्ट है, क्यों पसंद आता है उनको. जब आप उस सब के डिस्कशन में उनके साथ रहोगे ना, trust me, it's an eye opener. It's such an amazing thing to figure out. They also like ragdari. They also like songs which are more classical oriented than just the beats or retro or EDM alone. नहीं, ऐसा नहीं है. There's an amazing evolving session and process that you need to follow along with the kids of today and of course tomorrow. So हाँ, process है. पुराने सुनेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पुराने गाने ना वो हमारी जड़ें हैं.
और जो नए गाने और जो नई पीढ़ियां है ना, ये हमारे ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स हैं, तो ना बिना जड़ों के तो हम कहीं नहीं जाएंगे आगे। लेकिन जो नई पत्तियां और जो नए कपोले आ रहे हैं ना, उनको भी एंजॉय करने के लिए हमको खुद को भी उनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड इट्स अ एवर इवॉल्विंग प्रोसेस दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। I think कल्पना कैंडी has got logged out. वो अभी जुड़ रही हैं फिर से. Okay. I don't know whether मतलब how to refocus back, but we can converse. And I think आपने बहुत सही बात कही कि roots and branching of the branches or of the trees is what is happening today. And वैसे ही देखना चाहिए हमको इन सब चीजों को लेकर. Yeah. And not get stuck into True. typical views. And taste will change. Times will evolve. इवन हमारे घरों में जो खाना भी बनता था, शायद इतने सालों में चीजें बदल चुकी हैं. इट्स नेवर बीन द सेम. दूसरी चीज क्या है ना शंकर, जैसे व्हाट आई फील कि हर जगह यही तो जनरेशन गैप ब्रेक करता है ना। जैसे जब हम बच्चे थे, हमें अपने पेरेंट्स का एटीट्यूड शायद बहुत स्ट्रिक्ट लगता था कि अरे आपके जमाने में, व्हाई डू वी स्टार्ट द स्टेटमेंट बाय लाइक अरे आजकल तो नहीं, आजकल के बच्चे भी अपने ही हैं, राइट? वो अपना हमारे ही आगे वाले हैं। तो somewhere someone has to take the baton, give it to somebody and make them run. So let us be the ones who are giving them the baton and helping them run along in the long run is what I personally feel. कल्पना जी, शंकर जी, very well put together. आप जो कह रही हैं आने वाली पीढ़ी को हम ही को सौंपनी पड़ेगी और हम ही को वो स्टेप लेना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। और जो आपने कहा कि जो विचार और भाव एक ही, जैसे मदन मोहन जी का गाना जब वीर ज़ारा में आया, हाँ, उसके बाद बहुत से बच्चे दोबारा लग जाते फिर से सुनने और फिर जुड़े उससे। और आजकल के नए सिंगर्स में उसी गाने को कितनी बार रिप्राइज कर चुके हैं और आप हर बार सुनते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि आपको ओरिजिनल वर्जन ही सुनना पड़ रहा है। तो ये जो है आने वाली पीढ़ी भी जुड़ रही है। अच्छा संगीत, हाँ, है कि ज्ञान उसके लिए अर्जित करना कि आप उसको कितना नॉलेज की तरह देखना चाहते हैं, वो अगेन पर्सनल इंटरेस्ट और नीड बेस्ड हो गया है। क्योंकि आजकल इतना क्लस्टर है लाइफ में सबके कि समय निकाल के आप उससे कैसे बहुत क्लस्टर। एब्सोल्युटली। तो वो एक जो कहते हैं ना कि जिनको दोज हु सीक शैल फाइंड, राइट? वी डोंट नीड टू, सबको नहीं पढ़ा सकते हम, लेकिन जिनको सीखना है उनके पास आज के समय में मोर देन इनफ रिसोर्सेज हैं। मैं आज 50 पार करने के बाद आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक से नाता नहीं था, लेकिन म्यूजिक के बारे में बेसिक्स भी नहीं पता मुझे, सिवाय सारे गामा जो हमने स्कूल में सीखा। और इंजॉय करते हैं, राहत का शो हो या सुनिधि का शो हो, हम परफॉर्मेंस देखते हैं, गाना सुनते हैं, रिदम सुनते हैं और शब्द सुनते हैं। और जब म्यूजिक और शब्द हर बार एक नया असर लेके आता है, तो ये फैक्ट जो है ये, बट नॉलेज ऑफ कोर्स अगर थोड़ा ज्ञान होगा तो बेहतर होगा समझना और समझाना आने वाली पीढ़ी को। तो आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है इसको। आपने अभी एक जो बात छेड़ी ना कि रीमिक्सेस की, यस ऑफ कोर्स हमने ओरिजिनल गानों को इतना एंजॉय किया है, हमने इतना अप्रिशिएट किया है कि हम कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है कि उन गानों को बार बार कोई बना रहा है। लेकिन कुछ कुछ रीमिक्सेस, आई मीन जिनको कि रीप्राइज बोलते हैं या फिर कवर वर्जन बोलते हैं, कुछ कुछ जो है ना सच में अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम उसमें किया हुआ है और उनको सुनने में बुरा नहीं लगता। जैसे प्रतिभा सिंह बघेल हैं या फिर अरमान मलिक हैं, इन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गानों को अपने तरीके से, अपने अंदाज से गाया है। बुरा तब लगता है जब आप उसमें सिर्फ मेलोडी नहीं है या फिर आपने उन शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के कुछ कर दिया है, वो सुनने में भद्दा लगता है। लेकिन कुछ कुछ आर्टिस्ट की आवाज उन गीतों के लिए ऐसा लगता है कि इन पे भी सूट करती है, और अगर ये अपने अंदाज में हमको प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्यों नहीं सुनते हम उन लोगों को। इट्स जस्ट अ हैप्पी फीलिंग कि चलो इन बच्चों को पता है। जैसे आई हैव अ 15-year-old डॉटर, और आज मुझे एक लेवल की खुशी यहाँ होती है कि जब वो उसने शुरुआत की थी, हाँ, आर डी बर्मन के गानों से, गुलजार आर डी बर्मन के गाने सुनती थी, तो उसको पता नहीं कैसे अपने आप वो पसंद आने लगे। आज ना जैसे कई बार ऐसे कुछ गाने होते हैं, मम्मा ये उनका बनाया हुआ गाना है क्या, तो मुझे लगता है चलो कम से कम
इतना तो सुनने में आ रहा है कि वो समझ पा रही है कि कुछ एक स्टाइल है या फिर किसी एक की एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको कि वो हल्का सा, भले ही वो गलत हो, लेकिन उस दिशा में वो सोच रही है। ये सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो पीढ़ी है हमारे साथ में, हमको बस उनको गाइड करना है। नहीं, आपका पर्पस फुलफिल हुआ। जिस पर्पस से आप चली है कि आने वाली पीढ़ी उसको उससे जुड़ी है और उसको अपना रही है, वो बहुत बड़ी बात है जी। बहुत बहुत कैंडी, we missed you, but we had a great discussion on the question that you gave me. Yes. Yeah. Thank you. I joined from my phone. Seems like a Wi-Fi issue. Are you hearing my echo? No, echo nahi hai. There's no echo. Do you carry on? We'll listen. Oh, excellent. Okay, great. So Niketan ji says the role of music in Hindi films today is changed. After Pritam and Shankar Ehsaan Loy, the next gen have yet to take over. Possibly the same situation with actors. Well said. So, and Venki says we have youngsters in our school like Kartikeya who are exceptionally talented in absorbing music even of the 40s and 50s. And Kalpana ji to tippani di hai Niketan ji ne ki adding to Kalpana's point, my experience with casual listeners is that they have tuned out of any music that has come after their growing up years. My uncles and others never go beyond 60s. So, ममता जी आपको कुछ कहना है? Another 2 minutes. जी, मैं अभी कल्पना जी से कह रही थी कि कई बच्चे जो आजकल पुराने गानों का रिप्राइज वर्जन सुन रहे हैं, वो जाके ओरिजिनल भी सुन रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा चेंज है जो आने वाली पीढ़ी को अपने हेरिटेज के साथ जोड़ने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Is it working, Candy? Did you get it? Yeah. We are able to hear. Okay. Candy, you heard, no? We could hear you. Yeah. So. Yes, I can hear you. I'm going to try and bring. और अच्छा संगीत और अच्छी भाषा बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है अगर भाषा समझने लगेंगे ना लोग, जब वो स्लैंग से बाहर निकल आएंगे ना, तो वही मतलब आजकल तो हमको एक इंस्टाग्राम की भाषा सीखनी पड़ती है। हाँ, वही है कि जैसे हम लोग पहले ऑथर फॉर्म में लिखते थे, लॉन्ग फॉर्म चिट्ठियां लिखी जाती थी, अब हम व्हाट्सएप पे आ गए हैं, तो आने वाली पीढ़ी तो उसी पे आई है, तो वो कैसे जुड़ेंगे उस भाषा से। कहने का मतलब वही है ना कि हो सकता है उनकी भाषा हमसे अलग है, लेकिन अगर नियत और इरादे सही है ना, तो कम्युनिकेशन होना आसान है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गलती होगी। बिल्कुल। Okay, so 1 minute. अब फिर चली गई हैं शायद। I can't see Ramakant ji. It was his turn to talk about the book now. No, I think he has to be brought to the forefront now. That Candy only has the admin rights. StreamYard is a little different than Zoom. Yeah. No, मैं StreamYard पहली दफा जुड़ी हूँ लाइव में। वैसे तो हमने लॉकडाउन के टाइम पे इसको काफी इस्तेमाल किया था। हाँ, वही है, बट उसमें भी हम Zoom के बाद आते थे StreamYard पे। एक्चुअली इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको डायरेक्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हो YouTube और बाकी सोशल मीडिया पे, which unfortunately we are not yet able to do with our platform. Let's not name it. नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है और बढ़ रही है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। या तो कल्पना जी, आप कहाँ पे बेस्ड हैं? मैं बॉम्बे में हूँ, शंकर भी बॉम्बे में है। ओह नाइस। तो आप कभी इस बॉम्बे आए तो जरूर जरूर मिलेगा। आपका ब्रांडिंग बहुत अच्छा लगा मुझे म्यूजिकली।
कॉल भी है और म्यूजिक भी है साथ में। हाँ, मतलब जितना आसान है उतना ही इन डेप्थ है। आप संगीत के बारे में बात करेंगे, इफ यू टॉक म्यूजिकली देन यू हैव टू टॉक म्यूजिक। सो कहने का मतलब वही है कि मतलब हमने दायरे अपने मन में बनाए। संगीत है। जैसे आज मैं किसी से बात कर रही थी दोपहर को और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक राग जो कि बहुत कॉमन राग है, लेकिन वो मेरे नजर में शायद वो एक गाने में वो राग आया है, उनकी नजर में वो राग नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो उस एक चीज को पकड़ने के लिए हमने कुछ नहीं तो भी आधा घंटा स्पेंड किया जस्ट टू डिस्कस एंड फिगर आउट कि वो गाने में वो राग है या नहीं है। उससे और कुछ हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने 15 और गाने ऐसे डिस्कस कर लिए जिसमें कि उस राग के बारे में विशेषण था और हमारी लिस्ट में ऑलरेडी 15 गाने आ गए हैं उस राग के। तो कहाँ से क्या ज्ञान कैसे आप लेके नॉलेज तो कभी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको पता ही नहीं है। वो चीज का वही चीज नॉलेज कभी वेस्ट कमाल है। बिल्कुल। बट ये सब मैंने जब आई एम बैक। Yeah, Candy, please take over. Can you hear me? Yeah, are you able to get Ramakant ji? No, give it a minute. I will